उनकी बॉडी में ऐसी सहाबा की खुशबू सूंघ रही थी, बचपन के ज़माने में नानी कहती थी. Why? Because he was worrying about the people's living namaz and not practice upon the deen. He was worrying in his childhood. So Allah Tabarak wa Ta'ala has selected him in his childhood. After that, he became the worldwide, alhamdulillah, famous personality, and all the world, Allah Tabarak wa Ta'ala alive the deen of the people of the world, Muslims. So Allah Ta'ala ने उनको बचपन के ज़माने में सिलेक्ट कर लिया था. हम लोग जो मैंने कहा कि कौन फर्स्ट टाइम यहाँ आने के बाद निकला, इन्हें कहा मैं माशाल्लाह उसके पहले भी गया था, कुछ ने कहा मैं भी गए थे, वहाँ पर लगाया. तो ये अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट करवाया था, एक टेस्टिंग करवाया था हमको. ये भी अल्लाह ने उसको पसंद कर लिया था. अब मेरे भाई जो है, ये अल्लाह के रास्ते में जो हमारा वक्त लग रहा है ना, ये वक्त को लगाना आसान नहीं है. स्पेंडिंग टाइम 3 days, 40 days, 4 months इज़ नॉट आवर पर्पस. दिस इज़ नॉट आवर पर्पस. मकसद हमारा ये नहीं है कि चलो माशाल्लाह पीपल विल टेल के माशाल्लाह ये स्पेंड 40 days, 3 days. दिस इज़ नॉट अ पर्पस. सो व्हाट इज़ द पर्पस? मकसद क्या उसका? तो देखो, आई विल गिव एग्जांपल. व्हाट इज़ द पर्पस? उसका मकसद ही है मेरे भाई, ये 48 घंटे 72 आवर्स और 40 दिन 4 महीने 4 months, उसका मकसद है अमली ज़िंदगी पैदा करना, अमली प्रैक्टिकल लाइफ. अंडरस्टैंड? द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर अस कि वेयर आर द मुस्लिम्स हु आर डिस्क्राइब इन द कुरान. वो मुसलमान कहाँ है जो कुरान में बताया गया है. इसलिए मडागास्कर इज अ कंट्री. उस कंट्री में पाकिस्तान की जमात पैदल चल रही थी, वॉकिंग जमात. तो उस कंट्री में जब जमात को देखा, चर्च का पादरी बाहर निकला. द प्रीस्ट ऑफ द चर्च केम आउट एंड ही सॉ द पीपल वॉकिंग लाइक दिस. सो थिंकिंग फॉर अ व्हाइल, कुछ देर सोचने लगा. फिर उसने जब जमात करीब आई, व्हेन द पीपल ऑफ जमात केम क्लोजर, ही कॉल्ड देम इनसाइड द चर्च. अमीर साहब ने मशवरा किया, वी हैव टू डू मशवरा. तो व्हाट शैल वी डू? वी शुड गो इन द मस्जिद, हिज चर्च. तो मशवरा किया कि चलो अंदर जाते हैं. They went inside. That time, no other people except this Jamaat, because the Christian people and other religious people, they only go once or some for little time to their religious understand and their houses, places, understand. But Muslims, alhamdulillah, 5 times a day, every time. Then one day, I was reading a survey in UK. How many percentage places of worship are populated? आबाद कितनी परसेंटेज है? उसमें लिखा है कि हिंदू टेम्पल ओनली 10%, फिर क्रिश्चियन चर्च 2%, बट मुस्लिम मसाजिद मोर देन 95%. Why? Because of this effort. This is the country of UK. People used to pray Friday namaz on Sunday. They came here to earn money. They did not want to waste their money for 2 hours, 1 hour. The wages were cut from their salary. Understand? So that time it was not possible to pray Jum'ah namaz on Jum'ah day. They used to pray on Sunday. Now look what happened. Allah Ta'ala ne wo din dikhaye that the masjid where I pray 5 times namaz, it was a pub, alcohol pub. But mashallah, now it's masjid now. It's our own local masjid. And there, alhamdulillah, before 7 days I heard one more pub near our masjid is there on the corner of the Darul Blackburn. Mashallah, Muslim will bought it. And he decided, mashallah, to make a Muslim children madrasa, etc. So this is the effort of deen. Sometimes we think about कि यार जमात में क्या है, हम तो मस्जिद में रुकते हैं, we stay in the masjid and we just do gust in Muslim area only. What is the effect of this effort? कि क्या असर हुआ उसका? To go back 40 years before, 40 years, there was no single masjid here. People used to pray Friday on Sunday. Now what happens? Alhamdulillah. Now in Blackburn itself, big 3 Darul Ulum in Blackburn, and 3 Darul for girls, but well 5 Darul for girls from all Alim course. And in our Darul Blackburn, 250 students every year, they get admission for Hifz class. Hifz, understand? This is effect of deen, effort of deen. तो मैं यस कर रहा था कि वो माडागास्कर में जमात जब चल रही थी, तो चर्च का पादरी था, प्रीस्ट ऑफ द चर्च, he called all of them inside. तो उन्होंने अंदर जाने के बाद वो पादरी ने कहा कि look, I have been studying about Islam since last 30 years. I look in the Quran. I used to teach my Bible to my people on Sunday, right? But in my loneliness, in private, my room, I study Quran. But since last 30 years, I have been waiting for the people described in the Quran. The Muslims are such, when they walk on the way, on the road, they walk with politeness. They do not show arrogance like this, understand? गमन करना, तकब्बुर करना, ये मुसलमानों में नहीं होता है, सॉफ्ट और नरम होते हैं, उस मिजाज के लोग.
और बहुत सी सिफत देखी उसने, उनकी चाल ऐसी होती है, वो अच्छे होते हैं, उनका लिबास, नूरानियत वगैरह. सो ही told the अमीर साहब ऑफ जमात, I have been waiting since last 30 years. 30 साल से इंतजार कर रहा था मैं, लेकिन आज मैंने देखा चल के आ रहे थे लोग, तो मेरे लिए खुशी पैदा हुई कि अल्लाह 30 साल से जिसका वेटिंग कर रहा था, I saw them first time in my life. उसने कहा कि now today I am just giving glad tidings, बशारत देता हूँ मैं आपको कि मैं कलमा पढ़ता हूँ. कि मुझे जहन में ये था कि लोग खाली कुरान के अंदर है, वो दुनिया में है ही नहीं. तो मेरे दोस्तों बताओ, वो जमात नकलो हरकत न करती. If they don't have any kind of movement like this, how could the leaders of the church understand what Islam is? How Muslims are? This is a practical life. फिर उसने कहा कि what is the name of your अमीर? अमीर का नाम था अब्दुल माजिद भाई. He told, from today I will be recognized by अब्दुल मजीद. अब्दुल माजिद है उसने, मुसलमान बन गया वो. ऐसे this is the small story. Have you heard, any of you heard about Sheikh Johani? Sheikh Johani, is in London, right? When he came from Libya, he was the famous celebrity of Libya, footballer. The पहली मर्तबा यूके में आए, first time, because he was a famous person, right? Just as in India, cricket is a famous game. Any cricketer come from India, they will get job easily, right? With the famous, and government knows this is sportsman, understand? So first time when he left Libya, why? Because he was unable to practice Islam in his own country. अपने मुल्क में दीन पढ़ना मुश्किल था. He came here. Alhamdulillah, he got the job in a hospital. This is not the story heard from anyone. I had witness. I met him many times. He came to our school and gave many lectures as well. He said many karguzari of his life, how many people accepted Islam on his hand. So he told, when the first day when he came to hospital, London, Alhamdulillah, उसने ज़ोहर के अजान पढ़ी, ज़ोहर असर की पहली अजान, first अजान. After listening to azan, his prayer, namaz, one first namaz, 4 big surgeon converted to Islam. Surgeon of the hospital. How? Because Alhamdulillah, he prayed namaz with concentration, devotion. This is the part of Allah Ta'ala. We are just investing our time and we are getting more from Allah Ta'ala. We are now closer to Allah. How can I say we are closer to Allah? The example is, एक समंदर है, there is ocean like this. 2 borders of the ocean, right? 2 limits. This limit and this limit. 2 किनारे उसके, right? 2 bank of the river. समझ लो, for example, एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करे, इस किनारे पर आना शुरू करे. When he start walking from here, तो यहाँ से दूर होगा क्या नहीं? Yes, understand? Far from here and close from this. Understand? Far from here and closer from. यहाँ से करीब होगा, यहाँ से दूर होगा. तो अभी at this moment you all are far from our family, far from our jobs, far from worldly matters, and we are closer to the masjid and what a masjid. Now this is our own opportunity. How we use our time till tomorrow, whatever time we have decided. इस टाइम में अपने अमाल को बनाना, इसमें जो दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल करता है. ये रास्ता ऐसा है. और इस मेहनत की बरकत से देखो पूरी दुनिया में ऐसा इनकलाब आया है कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहनत के बारे में आज तक किसी ने शक नहीं, डाउट नहीं किया, बल्कि हमसे ज़्यादा बुरे जानते हैं. एक मरतबा व्हाट हैपन के मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर 5-6 यंगस्टर केम ऑन विजिट वीज़ा एंड दे वांटेड टू एंटर यूके इलीगली. देयर विजिट वीज़ा वाज फेक, बट दे वर प्रिटेंडिंग दैट दे आर फ्रॉम तबलीग जमात, कि वो तबलीग जमात के साथी है. दे ट्राइड टू लाइक दिस. So the Manchester Airport immigration officer called Maulana Ahmad Sidat or Blackburn, he magistrate that time. He was magistrate that time. So उनको phone किया कि मौलाना, one of the Jamaat group has come here, but we don't think they are from Tabligh Jamaat. कौन कह रहा है? गोरा नॉन मुस्लिम कह रहा है. So they know more than us what Jamaat is and what our effort and what our amal. So मौलाना went over there and they check किया तो सब के सब फेक थे. वो तबलीग जमात के साथी थे ही नहीं, हालांकि सब टोपी सब कुछ पहन कर आए थे. फिर उनको निकाल लिया. दे वेंट बैक टू देयर कंट्री, रिपोर्ट कर दिया उनको. मौलाना उस गोरे से पूछा, हाउ डिड यू नो दीज आर नॉट तबलीगी पीपल, हाउ डिड यू नो? तो कहा नो, व्हेन योर जमात कम टू आवर एयरपोर्ट, whether Manchester or London or anywhere, they do collectively service. They don't sit separately. They open some book and they read from inside and they sit together. When the time of prayer, they all come together and pray at the same time. These guys separately doing everything. मिठाड़ा को मालूम ही नहीं था काम में क्या होता है. समझे कि नहीं? अपनी लाल नमाज पढ़ते थे, कोई किताब कुछ नहीं, किसी को मिलना जुलना नहीं, बस अपना आपको बस ऐसा कर दिया काम जमात का बोल के घुस गए, फिर देखी जाएगी बाद में. ये काम लोग समझते हैं कि दिस तबलीग वर्क इज वेरी 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 अंधाधुन, कहते हैं अंधाधुन. ऐसा काम नहीं है. इफ एनीवन आस्क
brother Ashraf has gone to Bangladesh for 4 months, for example, and if his family members, where is my dad, where is my husband, so what will they tell? Okay, let me check. Within 5 minutes they will tell, oh, your husband is in Bangladesh, from Dhaka 250 miles away, in this village is there. हालांकि no network, no Google, लेकिन एक सेकंड में मालूम पड़ जाएगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह. इनका सिस्टमेटिक काम है ये. और इस काम के लिए पता है आपको, अल्लाह ताला सबसे पहले जो आदमी इस काम में निकलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्ची मोहब्बत देता है. कैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 पूरी जिंदगी इस फिक्र में रहते थे कि मेरा हर उम्मती जहन्नम से बच जाए. तो हमारी फिक्र भी क्या होती है कि मेरी ज़ात से लेकर पूरे आलम के अंदर हर मुसलमान दीन पर चलना चाहिए. तो इस काम में जो निकलता है साथी, सबसे पहले उसको अल्लाह इसके रसूल अता फरमाएंगे, वो सच्चा आशिक रसूल बनेगा हाँ उसकी ज़िंदगी में. और दूसरी बात मालूम है कैसे मालूम पड़ा, ये आशिक रसूल बन गया. व्हाट इज द साइन, हाउ डू अदर पीपल नो दिस पर्सन बिकेम द आशिक रसूल? तो क्या मालूम, कैसे मालूम पता? फॉर एग्जाम्पल देखो, अमीर साहब तो अच्छे आदमी है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं. ये सलीम नाम का कोई आदमी है, ये नहीं है सलीम नाम का आदमी, थर्ड पार्टी, नॉट दिस वन. यह बोले टारगेट मेरे को किया. कोई सलीम नाम का आदमी है, ये फर्स्ट टाइम 3 दिन निकला जमात के अंदर, राइट. और वो सलीम को मालूम है कि मैं कितना गुनहगार हूँ, कितना बदमाश इस इलाके का हूँ. और उस एरिया का जो मुफ्ती साहब भी होगा, इमाम साहब भी, उनको भी मालूम है कि ये बड़ा नालायक है, बदतमीज है. मगर जैसे अल्लाह के रास्ते तबलीग में जा रहा है, उसका बिस्तर देखा, क्या कहेंगे, भाई सलीम भाई दुआ करना माली. क्या करते ईमानदार से बताओ, कहेंगे कि नहीं? हालांकि उस बस्ती का तहज्जुद गुजार आदमी वो है, तकवे वाला आदमी है, अल्लाह वाला आदमी, वो क्या कहेगा, सलीम भाई दुआ कर. आप सलियो सलियो सब सलियो, ओ सलीम बड़ा ऐसा बोलते थे, राइट. अब क्या बोले, सलीम भाई. ईमानदार से नाम इज्जत से लेते कि नहीं, सलीम भाई मेरे लिए, सलीम भाई दुआ करना मेरे लिए. क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसकी पिछली जिंदगी में पहले पर्दा डाल दिया. क्यों? ये नबी वाले काम को लेकर उठा है. हमारे निजामुद्दीन मरकज, निजामुद्दीन की जो दिल्ली स्टेशन के ऊपर एक नौजवान मुसलमान था, सर पे टोपी. देखो अल्लाह ताला औलिया अल्लाह की, और जो अल्लाह के दोस्त बनते हैं, नबी का आशिक बनते हैं, उनकी अल्लाह कैसी इज्जत देता है. हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, उनकी मज़ार शरीफ दिल्ली में मौजूद है अभी भी, राइट. बड़े अल्लाह वाले थे. तो एक ट्रेन चल रही है, हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, राइट. तो उस ट्रेन मुसलमान था, उसने टिकट कलेक्टर सरदार जी था, पंजाबी सिख, उसको कहा कि भाई निजामुद्दीन स्टेशन आया. क्या बोला वो लड़का, निजामुद्दीन स्टेशन आया. तो सरदार जी ने उसको तमाचा मारा. सरदार जी स्लैप्ड हिम. उसने क्या पूछा कि ब्रदर इज निजामुद्दीन ट्रेन स्टेशन अराइव्ड? तो उसने दैट सरदार जी लाइक दिस, शर्म नहीं आती. बोला व्हाट हैपेंड, आई जस्ट आस्क्ड नेम, द नेम ऑफ द स्टेशन इज अराइव और नॉट. कि ऐसा बोल हजरत निजामुद्दीन. क्या कहा, क्या बोल, मुसलमान था किसी, व्हाट वाज ही, पंजाबी सरदार जी था. उसने कहा ये औलिया का नाम ऐसा नहीं बोलने का, हालांकि स्टेशन का नाम था. स्टेशन क्या बोला, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आया ऐसा बोल. तो अल्लाह ताला गैर मुसलमान की जबान पर भी वो औलिया अल्लाह की मोहब्बत डाल देते हैं. तो ये काम में निकलने वाला अल्लाह का महबूब बनता है. हमारे हर सारी भाई दुआ करना, दुआ करना. तो इस रास्ते में जो निकलता है, द पर्सन हु गोज इन दिस पाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला विल हाइड ऑल हिज पास्ट सिंस. अल्लाह को सत्तरी का मामला. क्यों? ये काम किसका काम है, नबियों वाला काम. तो नबियों वाला काम इतना लफ्ज इनफ है. दिस इज द एफर्ट ऑफ द प्रॉफिट अलैहिस्सलाम. नबियों वाला काम है. इस काम की कोई और फजीलत न होती. इफ नो वन कैन टेल यू अबाउट द वर्च्यूज एंड फजाइल ऑफ दिस एफर्ट, देन दिस वाज इनफ टू से दैट दिस इज द वर्क ऑफ प्रॉफिट्स. नबियों वाला काम है. मतलब क्या कि जो नबियों के साथ अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के खजाने और अल्लाह का गैबी निजाम जो साथ में था, इस रास्ते में चलने वाले का साथ भी है. समझे, ये ऐसी मदद अल्लाह करते साथ चलने वाले. तो पहले 27 का मामला करेगा अल्लाह का, अल्लाह विल हाइड ऑल आवर सिंस. नंबर 2, अल्लाह महबूबियत का ऐलान कर देते हैं कि मेरा महबूब. पहला इनको, मैंने सलीम को, मुझे मालूम है सलीम नालायक, अमीर साहब यहाँ पर सलीम की बात कर रहे हैं, ये नालायक है, मगर अल्लाह क्या बोलता है, ए खामोश, या मेरा बंदा मेरा बनने जा रहा है. तो उसके मोहब्बत से बोलो, दुआ करो उसके पास से, सलीम भाई दुआ करना मेरे लिए. तो अल्लाह पहले उसकी मोहब्बत आसमानों में डालते हैं, फिर अल्लाह ऐलान. ये शॉर्ट में कह रहा हूँ मैं, पहले इसकी महबूबियत का ऐलान आसमानों में हो गया, फिर जमीन पर वो फरिश्ता ऐलान करता है कि जमीन वालों, अल्लाह भी, उसके फरिश्ते भी, सातों आसमान की सारी मखलूक उससे मोहब्बत करती है, तुम भी इससे मोहब्बत करो. तो जैसे निकला बिस्तर रख के अगर, तो उसकी पसीना सलीम भाई दुआ करना. 70 उर्दू में क्या बोला, 70 का मामला. दूसरी बात, अल्लाह इस रास्ते में निकल को इज्जत देते. क्या देते हैं, इज्जत. हमको कोई पहचानता नहीं था. अब माशाल्लाह पहली मरतबा देखा कि भाई अमान माशाल्लाह गोल्डन से आए हैं, तो ब्लैकबर्न मरकज तो मुलाकात हुई. ओ माशाल्लाह 3 दिन बाद में बड़ी अच्छी, कहाँ क्या होता है बड़ा, ओ माशाल्लाह अमान भाई खैरियत से, मेरे भाई कैसे खैरियत. यानी सेम वे इफ अमान और एनीवन कम्स टू ब्लैकबर्न मरकज और दिस मस्जिद फॉर द वर्ल्डली पर्पस, नो वन विल आस्क यू
कोई पूछेगा भी नहीं आपको। यहाँ क्या बोले, भाई खाओ ना, आ जाओ, इतनी इज्जत करते हैं मकामी साथी भी। तो ये तो अल्लाह इज्जत देते हैं, अल्लाह सफ्तारी का मामला करते हैं। नंबर 3, अल्लाह विल गिव शोहरत, फेमस, अल्लाह उसको फेमस करते हैं, यानी अच्छी तरीके से इज्जत देते हैं, उसको शोहरत देते हैं, उसको सत्तारी का मामला करते हैं। और अल्लाह लज्जत देते हैं। क्या देते अल्लाह? ईमानदारी से बताओ मेरे भाई कि आप लोग जो घर पे सोते थे और यहाँ पे सो जाते हैं, कितनी मीठी नींद आती है? आती है कि नहीं? यानी मैं ही नहीं कि आप सोने के लिए इधर आए हो, मैं क्या कहता हूँ मैं सोने का मतलब कंपेयर करो, कंपेयर योर स्लीप एट होम एंड स्लीप ओवर हियर एज वेल। तो हमारी नींद में लज्जत, नींद में दिन में तो आएगी इंशाल्लाह, और लगते रहेंगे इंशाल्लाह, नींद में भी लज्जत आएगी। नींद में लज्जत और खाना में लज्जत होगी कि नहीं? सिंपल सादा खाना है, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह उसको लज्जत पैदा फरमाते हैं, आमल में नूरानियत पैदा होगी। और दिल के अंदर जो हमारे कचरा गंदगी पड़ी है ना, आदमी को अल्लाह ताला बताएगा। देखो मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूँ कि देखो इस रास्ते में निकलने के बाद हम जो है ना मेरे भाई, अपनी दुआ को ज़्यादा बढ़ाना, दुआ ज़्यादा मांगना। अल्लाह ताला में अक्सर सबको मिसाल देता हूँ कि एक तो आदमी के बॉडी में क्रैक होता है, क्रैक हार्ट में क्रैक हो गया, एक्सीडेंट एनीथिंग, तो डॉक्टर विल टेक स्कैन और एक्सरे लेगा, और एक्सरे के बाद बताएगा कि ब्रदर यू हैव सच एंड सच प्रॉब्लम इनसाइड, नाउ वी हैव टू डू ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एक्ट प्रॉपर्ली। ये करना ही पड़ेगा आपको। बट हाउ डिड द डॉक्टर डिसाइडेड? आफ्टर स्कैनिंग और एक्सरे। लेकिन इस रास्ते में जो बंदा निकलता है ना, अल्लाह ताला डायरेक्ट उसका एक्सरे उसको दिखा देंगे कि देख तेरे अंदर ये गुनाह है मेरे बंदे, तो ये तेरे अंदर गंदगी है। तो खुद आदमी तौबा करता है। कभी ये हमारे अमीर साहब क्या नाम भूल, हम हंजला कभी नहीं कहेगा कि अमान, अशरफ या फुलाना शकील तू तो ये धंधे करता था उधर, तौबा करिए बाबा। किसी ने कहा आज तक? किसी महीने? ईमानदारी से बताओ, किसी महीने कहा कि तू ड्रग्स लेता था, तू शराब पीता था, तू लड़कियों को ये करता रहा, वो करता रहा, गलत निगाह से देखता रहा? किसी महीने कहा? लेकिन इस रास्ते में निकलने वाला अल्लाह ताला बराह रास्त डायरेक्ट ओपन हिज आईज एंड ही मेक्स तौबा। अंडरस्टैंड? इंडिया में वन प्रोफेसर वाज इन इंडिया बिफोर 30-40 years when mobiles were not available that time. नो STD वाला सिस्टम था, वो STD ISD लोग जाते बार फोन कर, राइट? तो दैट टाइम वन प्रोफेसर साहब वाज इन द कॉर्नर इन द 40 जमात, ही वाज राइटिंग अ लेटर टू हिज वाइफ, बीवी को लेटर लिख रहे हैं, एंड इज क्राइंग कंटिन्यूअसली, वाइफ क्राइंग, रो रहे हैं वाइफ कंटिन्यूअसली। तो आप जैसे नौजवान यंगस्टर्स थे जमात में, यंगस्टर्स, दे आस्क्ड प्रोफेसर व्हाट हैपेंड टू यू, हैव वी एनी गिव डिफिकल्टी टू यू, हाउ टू यू, एनी प्रॉब्लम फ्रॉम अस? लेकिन नो, किसी ने मुझे कोई तकलीफ नहीं दिया। आज मेरी आंख खुल गई। क्या खुल गई? मेरी आंख खुल गई। ओपन माई आईज, आई केम टू रियलाइज व्हाट। लेकिन अभी तक जब मैं घर पर था तो मेरे घर में मेरी बीवी, माई वाइफ, यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल सालन, टेस्टी फूड, डिलीशियस फूड, बट समटाइम्स रोटी कच्ची होती, थोड़ी सी रोटी कच्ची होती, नॉट प्रॉपर रोटी चपाती, आई यूज्ड टू थ्रो ऑन हर फेस लाइक दिस, कि नाना कभी रोटी बनाए ठैक, फिर चावल थोड़ा सा नमक ज़्यादा होगा, सॉल्ट मोर सॉल्ट, आई यूज्ड टू थ्रो द bowl as well. Every time I didn't make qadr and value of the food made by my wife, but now मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी वाइफ, मेरी बीवी तो मुझे खाना बना के देती थी, उसका एहसान था। मैंने उसको बहुत जुल्म किया है। मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं मेरी बीवी को लिख के कह रहा हूँ कि अल्लाह की बंदी मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत जुल्म किया तेरे। कौन से अमीर ने उस प्रोफेसर को कहा था कि तूने अपनी बीवी पर जुल्म किया? Who which अमीर told him? He realized himself. अल्लाह ताला, बिकॉज कि निकलने वाले जब आप निकले थे वहां से, आपकी हिदायत पर हुई थी ना वहां से, तो कहा था कि भाई हम अपनी इस्लाह के लिए जा रहे हैं, वी आर कमिंग हियर फॉर आवर ओन रेक्टिफिकेशन, not to teach any people outside this mosque or around this area, not for the hidayah and guidance of the people, I have come for my own self. हॉस्पिटल में जो आदमी जाता है जीपी के पास ट्रीटमेंट के लिए, तो किसी और के लिए जाते हैं, मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी डॉक्टर के पास, तो ऐसा करूंगा डॉक्टर साहब मैं तो असरफ की खबर के लिए आया हूँ कि उसकी बीमार है ना वो, तो उसके लिए मेरी चेक करूँ तो उसको अच्छा हो जाएगा, होगा ऐसा? बोला तो अपने लिए इसके लिए तो उसका कराएगा, उसके टाइम तो किराया कर दे भाई, समझे कि नहीं? माई ओन अपॉइंटमेंट। तो हमने अल्लाह से अपॉइंटमेंट लिखे कि अल्लाह हमारे कबूल फरमा, तो अल्लाह मसला तेरी अपॉइंटमेंट कबूल हो गई इस वीक के लिए, समझे ने? ये अपॉइंटमेंट एवरी मंथ वी हैव टू डू टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इफ नॉट एवरी मंथ एटलीस्ट ट्वाइस, 2 months में एटलीस्ट वन टाइम। मैं ये नहीं कहता कि यू कम एवरी मंथ फॉर 3 days और 2 days, एटलीस्ट हमेशा 1 महीने में मरतबा, 2 महीने में मरतबा निकले, कोशिश करें इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला है ना हमारे अंदर के सारी चीज़ें खोल देता है, तो आदमी तौबा करता है। हमने कई नौजवान देखे ऐसे कि their parents were very worried about their life, but now this same youngster they wake up at night time and make dua for their parents। दिन उसकी दुआएं करते हैं मेरे भाई। और देखो हमेशा याद रखो
कि हम अपनी ज़िंदगी में जितनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों का अहतमाम करेंगे ना, अल्लाह तबारक व तआला इतना नूर अता फरमाएंगे। देखो एक मिसवाक की सुन्नत, मिसवाक जिनके पास अभी नहीं है इंशाल्लाह तो उसको आदत डालो उसकी। मिसवाक इतनी ज़बरदस्त सुन्नत है कि मिसवाक के बारे में एक साइंटिस्ट ने लिखा है कि देयर नो एनी डिसीज ऑफ द टीथ इन पास्ट। पहले ज़माने में दांत की कोई बीमारी नहीं थी, there was no disease, no illness of the teeth or tooth pain, anything, कुछ था ही नहीं। उसकी वजह क्या थी? तो उसने लिखा बुक के अंदर कि सबसे पहली दुनिया में जो नहीं कहते कि एड्स का मरीज कौन है, कैंसर किसको हुआ, कोरोना किसको हुआ, तो सबसे पहले दांत किसको दर्द हुआ था, कौन था और कब शुरू हुआ, when was it begin, understand? तो उसका आंसर उसने लिखा कि जिस दिन से इन मुसलमानों ने, the Muslim people, they left the habit of miswak, then dental surgery existed. मुसलमानों ने जिस दिन से मिसवाक को अमल छोड़ दिया तब से डेंटल सर्जरी वजूद में। तब लोगों को मालूम पड़ा कि दांत की कोई बीमारी होती है, तो बीमारी दांत की थी नहीं मेरे भाई। और जब आदमी मिसवाक करता है मिसवाक, तो फज़ाइल मिसवाक में हज़रत शेख ज़की रहमतुल्लाह ने हदीस के वजह से लिखा है कि द पर्सन हु डज मिसवाक एवरी टाइम द एंजल्स बिहाइंड हिम मेक अनाउंसमेंट कि ओ अल्लाह's pious person, you are on the footsteps of prophets। ओ अल्लाह के नेक बंदे, तू नबियों के नक्शे कदम पर चलता है। कौन ऐलान करता है? फरिश्ता हमारे पीछे। This we cannot see the unseen, the system of Allah Taala, but make यकीन inside, create यकीन पैदा करे कि बेशक अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करता है कि ये अल्लाह के नेक बंदे नबियों के नक्शे कदम पर चलता है। और हमारे इंडिया में बात खत्म करता हूँ मैं। इंडिया में आप सबको मालूम है कि कम्युनल प्रॉब्लम होता है। कंपनी में इंटरव्यू में जाते हैं जॉब के लिए, तो पहले तो नाम लिख के निकाल लेते हैं, अगर नाम लिख के रखते हैं फॉर्मेलिटी के लिए कैसे बुलाते हैं। तो आज से तकरीबन 10-15 ईयर वन यंगस्टर वेंट फॉर इंटरव्यू एज ए इंजीनियर, राइट। तो कंपनी में गया, ही हैड मिसवाक इन दिस पॉकेट, he knew I am not going to be selected but I am going just for experience। वो लोग सिलेक्ट करना थे ही नहीं, समझे कि नहीं। लेकिन जब अल्लाह चाहता है ना कोई बिगाड़ नहीं सकता उसका। एक सुन्नत की मैं समझता हूँ मैं आपको। वो लोग मिसवाक रखे गया, तो जब कंपनी में उसका इंटरव्यू हो रहा था, हिज इंटरव्यू वाज गोइंग ऑन, तो डायरेक्टर भी था, मैनेजर भी, सब पूरा ग्रुप है इंटरव्यू वाले। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आस्क्ड हिम, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस स्टिक, लकड़ी, ये लकड़ी क्या है, क्या उन्होंने, व्हाट इज दिस स्टिक। उन बेचारों को क्या मालूम है कि हमारे नबी जिनकी वजह से तुम्हारा दुनिया में आना हुआ है, समझे कि नहीं, तुम भी इनकी बरकत से आए हो। नबी को अल्लाह पैदा न करता तो तुम भी यहाँ नहीं आते, समझे कि नहीं। तुम्हारा मुसलमानों का भी और गैर मुसलमानों का भी और दुनिया के बड़े बादशाहों का भी यहाँ का वजूद किसकी बरकत से है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उनको पैदा न करता तो ना हम होते ना आप, कोई नहीं होता इस दुनिया के अंदर। अल्लाह का मकसद था, एक ज़ुहूर करना था, अल्लाह का अपनी कुदरत जाहिर करना था कि देखो हमें ऐसे नबी पैदा करते हैं। तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी यहाँ पे। द मैनेजर आस्क्ड द मुस्लिम इंजीनियर कि व्हाई यू कीप दिस स्टिक इनसाइड। तो उसने क्या बोला, मन साहब ये लकड़ी नहीं है सर, नॉट। उसको मालूम था कि नौकरी बाहर में गई, उसको बोलता हूँ क्या चीज़ है, उसको दावत देकर आऊँ, उसको नौकरी दे के न दे, मैं नबी की बात करके आऊँगा। डरे नहीं हम, दावत देने में कोई डरना नहीं, अल्लाह की ताकत हमारे साथ है दोस्तों, समझे। अभी हम लोग गए ना बांग्लादेश के अंदर, तो हम बड़े बड़े मिनिस्टरों के पास जाके हमने कहा, मैं खुद गया था उनके पास, ऑफिस में गया था मैं उनके, कि तुम्हारी जो ऑफिस है मिनिस्ट्री, ये कुछ साल तक है, मौत से पहले रिटायर तुम हो जाओगे ना, तुमको ठूकेगा भी नहीं। अभी साहब हाई साहब 58 ईयर्स के बाद या गोइंग टू रिटायर। लेकिन दीन की जो मेहनत है तुम्हारे मौत के बाद भी अच्छे नाम से लोग याद करेंगे। मैंने कहा ना सरदार जान बोल हजरत निजामुद्दीन बोल, क्या बोल, औलिया अल्लाह की मोहब्बत डाले, हम भी अल्लाह के औलिया बन सकते हैं दोस्तों। नबूवत का और सहाबियत का दरवाजा बंद हो गया, मगर हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस मेहनत में निकल के हर बंदा अल्लाह का वली बन सकता है, उसका दरवाजा कामत खुला है दोस्तों। हाँ, तो उस नौजवान ने कहा कि दिस नॉट अ स्टिक, दिस इज द मिसवाक ऑफ प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैबिट। देन ही काउंटेड मिनिमम 40 एडवांटेजेस ऑफ मिसवाक। हाउ मेनी एडवांटेजेस? 40 बेनिफिट गिनवाए इंटरव्यू के अंदर कि मिसवाक का ये फायदा है, ये फायदा है, आंखों की रोशनी मिलती है, लाइट ऑफ द आईज, ब्राइटनेस ऑफ आईज एंड क्लीन्स ऑफ द हार्ट एंड क्लीन्स ऑफ एवरीथिंग, सब समझा उसने कि स्टमक की बीमारी खत्म हो जाती है। हालांकि मिसवाक के 70 से मोर देन 70 बेनिफिट्स है, बट ही काउंटेड 40 बेनिफिट्स। आफ्टर द इंटरव्यू फिनिश he decided I am not going to be selected, but he was selected। उसको पसंद कर लिया, तो अंदर चूच में बोलने लगे वो लोगों के अंदर, क्या तुम मियाँ को सिलेक्ट किया? क्या बोलते वो लोग, मियाँ को क्या अपने वाले नहीं मिलते दूसरे ज्ञान जाने अपनी कौम के। मैं भाई तुमने सुना देखा नहीं क्या किया उसने अभी इंटरव्यू में? बोला क्या हुआ कि एक आदमी हमारी कंपनी में इंटरव्यू में आया, एक छोटी लकड़ी के 40 फायदे गिना सकता है, तो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट कितने फायदे गिनाएगा वो? समझे कि नहीं? इतनी प्रोडक्ट होगी वो प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, हाउ मेनी एडवांटेजेस ही विल नॉट काउंट।
He can count 40 advantages of simple stick. How can you not able to explain the people about the benefits of the product of the company? तो सिलेक्ट कर लिया उसको, किस वजह से? एक सुन्नत। ये एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो नियत करो मेरे भाई, पहली बात तो ये कि इंशाल्लाह हम लोग 24 आवर्स की जो सुन्नतें हैं जिससे आदमी अल्लाह का वली बन सकता है, मेरी बात नहीं है, कुरान की बात है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, मेरे फ्रेंड बनना चाहते हो, फ्रेंड मीन्स वली, वली अरबी लफ्ज है, इंग्लिश में उसको फ्रेंड कहते हैं। अगर मेरे वली बनना चाहते हो तो क्या करो? मेरे नबी की इत्तिबा करो। तो खाने पीने से लेकर हर एतबार कोशिश करें कि हम हर सुन्नत पर अमल करें, और आइंदा कोशिश करें इंशाल्लाह कि भाई महीने में एक मरतबा, नॉट एवरी थर्सडे, यू ऑल मेक इंटेंशन कि इंशाल्लाह ताला वंस इन अ थर्सडे, वन थर्सडे इन अ मंथ, try to come to Markaz inshallah. People from Liverpool, Manchester and all over the Lancaster come to Markaz Blackburn, and they come to Markaz over there. Sometimes the pious person just gives some speech and we don't know, some words are very penetrating our heart, will be affecting our life to changing. उनके कभी अल्लाह वालों के अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिंदगी बदल जाती है। तो करते सब ये इंशाल्लाह। देखो दीन की बात तो ऐसी है कि 24 घंटे खत्म नहीं होगी, लेकिन हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि उसको लिमिट में रखो, वरना वो कहेगा कि यार शकील सर को बोला कि गलती की हमने नींद की ऐसी कर डाली। ऐसा नहीं है, मैं मुख्तसर आपको समझाया मैंने कि बाप अल्लाह से दुआ करके अल्लाह ताला हमें अल्लाह का रसूल का सच्चा आशिक बनाए, अल्लाह हमें अपना वली बनाए। क्या बनाए? अल्लाह, इसका करेंगे सारे इंशाल्लाह।